Hello everyone, I am back. So today we'll be studying another topic, that is in the initial rate method to determine the order of the chemical reaction. So in the last lecture, that's in the previous lecture, lecture number 3, we studied about the rate equation and the order of the chemical reaction. It's a very important topic in chemical kinetics. So today we'll be continuing with that topic. We'll be studying about the initial rate method to determine the order of the chemical reaction. So if you are new here on this channel, I would request you to please subscribe to this YouTube channel and also press the bell icon for any future notifications of the videos on this YouTube channel. And you can also share these videos with your friends and with your relatives, anyone who is in class 12th and class 11th and who is going to be the aspirant of the NEET or JEE exam, so they can get benefited from these lectures. So let's start with the initial rate method to determine the order of the chemical reaction. So, and we know in the previous lecture what we did is we know if we have like 2A plus B gives products. Now we can write here the rate of reaction ROR. We write it as ROR is equal to R. You can write this K, that's the rate constant, A raised to power X, B raised to power Y. Now this is basically your rate law expression, or we call it as rate equation. This is your rate equation, or we can also call it a rate law expression. Now here we know this is rate of reaction. This K is basically your rate constant, and this A is concentration of A. Is concentration of reactant A, you can see mole per liter, and B we can see its concentration of the reactant B, again in moles per liter. Now X is the order of reaction with respect to the reactant A, with respect to A, and Y is order of reaction with respect to reactant B, and N we write it as X plus Y. This is basically the overall order of reaction. So these things are very important. So you have, like, suppose we have some reaction 2A plus B gives products, and we have rate of reaction R is equal to K, A to the power X, B to the power Y. This is your rate law expression. We presume this is the rate law expression or rate equation. K is rate constant. Now this rate constant can have units as per the order. Now its units will be different for different order reactions. For zero order reaction, the rate constant will have different units. For first order, it will have different units. So it will depend upon the order, which we actually did in the last lecture. That lecture is now available on the YouTube, so you can go and check that lecture. A is concentration of A, that's mole per liter, because concentration is number of moles per unit volume. B is similarly concentration of B. X is order of reaction with respect to this reactant A, and Y is order of reaction with respect to reactant B. And when you try to find the overall order of the reaction, that's N equal to X plus Y. That will give you the overall order of the reaction. Okay, so now what we will do is we will see what we do in this initial rates method. Now in the initial rates method, you have been given the initial rates of the reaction. The initial concentration is given for, like, suppose we have two reactants A and B. The initial concentration will be given at a particular, and for which you will be given the rate of the reaction, initial rate of reaction. Let's suppose we have some reaction 3A plus 2B, it is giving you products. Now this is the reaction. Now we have a question. Now question goes like this. We have a question. We have initial concentration of A. Initial concentration of A. Of course it will be in moles per liter, because concentration is always in moles per liter. And then we have initial concentration of B. Again, it will be in moles per liter.
and we have initial rate of reaction, and it will be moles per liter per second. So now first we have initial rate of reaction is 0.1, and initial concentration of A and initial concentration of B again is 0.1, and it is initial rate of reaction is 2 into 10 to the power minus 3. Then we have 0.1, this is 0.2, here we have 0.2, we have 0.1, and we have 1 into 10 to the power minus 3, and this is 4 into 10 to the power minus 3. Now what we have to find here is, we have to find the rate equation and order of reaction and also rate constant. Now we have to find these things. Now when you try to solve this question, now there are two methods. First one is like we will presume some rate equation. Now we say that, let's suppose, now we will let here. What we'll do here is we will presume now we let ROR, that is rate of reaction, is equal to R is equal to K A to the power X B to the power Y. Now this we are actually supposing that the rate equation is of this form. Now here we will put these values. Now we'll make equations. So first, now we have R is equal to 2 into 10 to the power minus 3 is equal to K. A is given, it is 0.1 raised to power X. B is given 0.1 raised to power Y. Call this equation first. Similarly, we will use this 1 into 10 to the power minus 3 is equal to K. This is 0.1 raised to power X. This is 0.2 raised to power Y. This is second equation. Similarly, you will have third equation, that's 4 into 10 to the power minus 3 is equal to K. It will be 0.2 raised to power X. This will be 0.1 raised to power Y. Equation 3. Now you have these three equations. Now you will try to solve these three equations. Now what you do is, in the first equation, if I divide, now what I am doing is I am dividing first divide by second. Now first divide by second equation, if I do this, I divide this equation by this. So when you divide here, so this 10 to the power minus 3, so on the left side we will get 2. K will cancel, this will cancel, the only thing will be this by this. So it will be like 2 to the power minus Y. This symbol will cancel like this. So when powers this equal, so power should also be equal, so Y is equal to minus 1. So you got Y is equal to minus 1. So now you have to find X. Now how will you find X? Now again solve these equations. Now let's suppose we are dividing third by first. Yeah, we will do one thing. We will divide third by first. Now what we do here is we do third divided by first, third equation. So when you divide this by this, so you will get here 2. Now this will cancel, this will cancel, so K will cancel. So it will be 0.2 by 1, so it will be 2 raised to power X. It's 2 raised to power 1, so you will get X is equal to 1. Now you got X is equal to 1, you already got Y is equal to minus 1. Now you got this equation, we have presumed this equation. Now the equation that we have presumed actually, now we got that now that equation basically is rate of reaction R is equal to K
it is a raised power x is what, 1, b raised power y is equal to minus 1. Now this is your rate law expression, general rate law expression. Now you also have to find this rate constant. We have to find a rate constant also. Now how you can find rate constant? Now till now I assume that you have actually got it, what I did. So very simple. You have these initial concentrations of A and initial concentration of B given. You have initial rate of reaction given. So you only presume that this is actually your equation. Rate of reaction is K, A to the power X, B to the power Y. So you put in these values here, and you made 3 equations here, first, second and third. And then you only try to solve these 3 equations. Like now dividing first by second. So we got y is equal to minus 1. And then dividing third by first. Third equation we divided by first, and we got here x equal to 1. So, and in this way we got r is equal to this k, a to the power 1, b to the power minus 1. Now if you see here, you can also find the overall order. The overall order will be this sum of the powers of these concentration terms, sum of the coefficients. So 1 plus, so this is overall, it's a zero order reaction. Overall it's a zero order reaction. So it is a zero order reaction overall. But its order with respect to reactant A is 1 and its order with respect to reactant B is minus 1. Now what we have to find is, we have to find this K, the value of K we have to find. Now we can easily find the value of K. Now let me show you how. We can easily find the value of K. So what we can do is, we have this R here. Now we can put this value of R, that's 2 into 10 to the power minus 3 is equal to K. You have to find actually, at this time we have A is equal to 0.1. This will be raised to power 1, and B is 0.1. This will be raised to power minus 1. Now what we can get here is 2 into 10 to the power minus 3 is equal to K. Now you have same, base is same, so powers will add. It will be 1 plus minus 1. So it will be K 0.1 raised to power 0. So anything raised to power 0, it is like 1. K into 1, it is simply K. And now you will get K is equal to 2 into 10 to the power minus 3. And the units will be, because it's a zero order reaction. So it's a zero order reaction, 1 plus. So it will be moles per liter per second. Now this will be the value of the K. So when we got this value of K, now we can simply write, that what we can write is, we can write R is equal to K is 2 into 10 to the power minus 3, A raised to power 1, B raised to power minus 1. So this is your rate equation or rate law expression. This is your rate equation. And order of reaction is equal to 0, 1 plus minus 1. And your K, that rate constant, is 2 into 10 to the power minus 3 moles per liter per second. But dear students, now what I have to tell you actually, now this actually will take a lot of time. It will, because when this exam, in this question, जब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, वहाँ पे आपके पास इतना समय नहीं होगा इसको करने के लिए. You will be having very limited time to solve this question. For example, suppose this question is asked in the exams tomorrow in IIT JEE exam or NEET examination for that matter. So you have to find some shortcut method. Now I will show you how you will do it by the shortcut method. I hope you have taken the notes of this. So I'm going to rub some parts here. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको नोट किया होगा. तो मैं कुछ पार्ट्स को रब करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो we will now do a shortcut method. How we can do it by shortcut? आप इसको shortcut से कैसे करोगे? Sorry, I have rubbed some parts of that also. So उसको मैं दोबारा से लिखूँगा. Now you will see how we will do it by shortcut method.
it was here 1 into 10 to the power minus 3, it was here 4 into 10 to the power minus 3. Now we will use the shortcut method. We will use shortcut method. This will be very useful in the exams. Let's see here. अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा कंसंट्रेशन में, नो चेंज। लेकिन यहाँ पे अगर आप रिएक्शन देखोगे हाफ हो रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपकी जो रिएक्शन है, आपका जो वो है कि जो है आपका यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे आपका डबल हो रहा है। Now here your concentration is doubling, आपका कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, लेकिन और यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन जो है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, रेट इज डबलिंग। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपका रेट, ये जो कंसंट्रेशन है वो डबल हो रहा है, इट डबल्स, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। और सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज आपका जो है हाफ, जो है इसका हाफ हो रहा है, यहाँ पे 2 इंटू पावर। तो आप इसके हिसाब से ऐसे लिख सकते हो, विद रिस्पेक्ट ए अगर आप लिखोगे रेट डबल हो रहा है, जो है आपका कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, तो रेट भी डबल हो रहा है, तो यू कैन राइट ए रेज़्ड पावर 1। एंड विद रिस्पेक्ट बी, जब आपका ये डबल हो रहा है, व्हेन इट डबल्स, तो यहाँ पे हाफ हो रहा है, तो वी कैन राइट बी रेज़्ड पावर माइनस 1, और वी कैन राइट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए रेज़्ड पावर 1 b raised power minus 1. We can say r is equal to k a raised power 1 b raised power minus 1. और यहाँ से आपको r का जो है, r की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू k। a की वैल्यू आप ले सकते हो ये 0.1 रेज़्ड पावर 1 एंड दिस 0.1 रेज़्ड पावर माइनस 1। तो ये सेम यहाँ पे ये होगा कि जो ये है दोनों बेस सेम है, पावर्स विल एड अप, सो ऊपर 0 आएगा, 0.1 के ऊपर 0, दैट मीन्स एनीथिंग रेज़्ड पावर 0 इज 1, सो k इज इक्वल 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो ये आपको k की वैल्यू आ जाएगी, जो आपने पहले k की वैल्यू निकाली थी वो भी यही वैल्यू आई थी। तो शॉर्टकट मेथड से आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो रहा है, और यहाँ से आप ऑर्डर भी निकाल सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, 1 प्लस माइनस 1, 1 प्लस माइनस 1, ये आपका 0 हो गया, दैट मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो शॉर्टकट मेथड से करने में आपको बहुत कम समय लगेगा, यू कैन डू इट इजीली, एंड आपके पास जो है टाइम बहुत कम होता है एग्ज़ाम में, तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा एग्ज़ाम में। तो नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आपको बच्चों पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो है PYQs हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी पड़ेगी खुद ही। तो वो क्वेश्चंस आपको कंटिन्यूसली सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आपके क्वेश्चंस के ऊपर कमांड बनेगी कि जो भी क्वेश्चंस आपको वहाँ आएंगे तो आप उनको कर सकते हो। तो नाउ वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली 2a, आपके पास 2a प्लस b है, इट गिव्स प्रोडक्ट्स, ये कोई रिएक्शन हो रही है, आपको इनिशियल a दिया गया है, इनिशियल a हैज़ बीन गिवन सेम इन मोल्स पर लीटर। सिमिलरली आपके पास इनिशियल b दिया गया है, मोल्स पर लीटर में ये भी है, और आपको दिया गया है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल ROR जिसको हम बोलते हो, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। अब ये आपको पहले दिया गया है 0.2, यहाँ है 0.1, यहाँ है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, दूसरे में दिया है 0.2, यहाँ पे 0.2, यहाँ है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। उसके बाद आपको दिया गया है 0.4, ये दिया गया है 0.2,
ये दिया गया है 0.25 × 10⁻³ आपको क्या क्या निकालना है? आपको निकालना है फाइंड रेट लॉ को पता करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है, और उसके अलावा आपको निकालना है रेट कांस्टेंट। ये 3 चीज़ें आपको इसमें पता करनी है। तो पहले हम लेट एज्यूम करते हैं, लेट r = k a⁴x b⁴y। अब r की वैल्यू हमको पता है पहले क्या है, 1 × 10⁻³ = k। a की वैल्यू क्या है 0.2x, b की वैल्यू है 0.1 y। ये इक्वेशन फर्स्ट बनती है हमारी, और दूसरी बनेगी 4 × 10⁻³ = k 0.2x 0.2 सेकंड इक्वेशन 0.25 × 10⁻³ k 0.4 2 y। दिस योर इक्वेशन 3। अब ये जो 3 इक्वेशंस हैं इनको आपको सॉल्व करना है। अब हम अगर पहली और दूसरी इक्वेशन पे देखते हैं तो हम करते हैं सेकंड बाय फर्स्ट। नाउ वी विल डू सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। सो यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, ये कटेगा, यहाँ कटेगा ये, तो ये आपका आ जाएगा 2⁻y। तो ये आएगा 2² = 2⁻y। दिस विल इम्प्लाई y = 2। तो यहाँ से आपको y मिल गया, y की वैल्यू क्या होगी 2। अब हमको यहाँ से निकालना है x। अगर हम सेकंड, नाउ वी विल डू सेकंड डिवाइड बाय थर्ड। अब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2⁻⁻x। आप इसको कर लो 2⁴ = 2⁻⁻x। यहाँ से आपको x की वैल्यू आएगी -4। x आपको माइनस, तो आप अब इजीली लिख सकते हो रेट लॉ = k a⁴x is -4 b⁴y = 2। ये आपको आ गई। तो अब यहाँ से आपको ऑर्डर भी पता चल जाएगा रिएक्शन का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, -4 + 2 दैट मीन्स -2, दैट इज नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको ऑर्डर पता चल गया, दैट्स -2। अब यहाँ से आप k भी निकाल सकते हो। r जो है, r की वैल्यू आप पुट कर लो। लेट्स वी टेक दिस, यहाँ पे हमारा 0.2 है, तो r की वैल्यू है 4 × 10⁻³ इस वाली इक्वेशन में पुटअप करेंगे k निकालने के लिए। ये 0.2 ⁻⁴, ये है 0.2 तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 4 × 10⁻³ = k 0.2 ⁻⁴ + 2, तो यह आ जाएगा k 0.2 ⁻²। तो दिस इज बेसिकली 4 × 10⁻³ = k 0.2 ⁻²। So this is k 2 × 10⁻⁻1 ⁻²। तो ये आ जाएगा k 2 ⁻² × 10⁻⁻+10⁻²। तो दिस इज बेसिकली k × 10⁻² डिवाइड बाय 4, तो इक्वल है 4 × 10⁻³ के, और यहाँ से आपको k की वैल्यू आएगी 16 × 10⁻⁵, और आपको k की यूनिट देखनी पड़ेगी, k की यूनिट क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर क्या है आपका -2, तो वो आपको देखना पड़ेगा। वो आ जाएगा मोल पर लीटर ⁻1 -n, दैट इज +2 दैट सेकंड इनवर्स। तो दैट मीन्स ये आपका जो 1 + 2 यहाँ पे क्यूब होगा। तो आप ये कह सकते हो आपको k का वैल्यू आ जाएगा 16 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर ⁻3 सेकंड इनवर्स।
तो ये आपको के की वैल्यू आ जाएगी इसमें 16 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर क्यूब सेकंड इनवर्स। तो ये आप चेक कर सकते हो उसको। तो कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। आपको इनिशियल ए दिया होगा, इनिशियल बी दिया है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दिया है। तो ये पहले हम प्रेज्यूम करते हैं कि एक लेट सपोज की हमारी इक्वेशन है, हम लेट कर रहे हैं कि हमारी इक्वेशन बन रही है। तो इस इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। आर की वैल्यू दी है, उसकी करस्पॉन्डिंग में ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। सिमिलरली दूसरे केस में ये दिया है, आर दिया है कि ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू। तो 3 इक्वेशंस बनेंगी इन टर्म्स ऑफ दिस। तो यहाँ से आपको जो है इनको आपस में डिवाइड, मल्टीप्लाई वो सब करना है। तो उससे आपका एक्स और वाई निकल आएगा। जब एक्स एंड वाई निकल आया तो आप ये जनरल इक्वेशन लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पता चल गया, सम ऑफ द पावर्स ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो ये आ गया। फिर उससे आपका के का वैल्यू आएगा। नाउ अब इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है, तो इसको आप कैसे इजी वे में कर सकते हो, तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जो हमारा शॉर्टकट मेथड है, हम शॉर्टकट मेथड इस केस में कैसे लगा सकते हैं। अब हम शॉर्टकट मेथड की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहेगा। आपने देखा होगा कि इसमें बहुत टाइम लगेगा ऐसे इसको करने में। तो शॉर्टकट मेथड से आप इसको कैसे कर सकते हो। Now shortcut method which is very important for exam, important for entrance examination। जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको बहुत ही फायदा करने वाला है ये शॉर्टकट मेथड, जो भी जेईई एग्जाम है, नीट एग्जाम हो। पहले आप देखो कि यहाँ से जब आपका यहाँ से जो है डबल हो रहा है, यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है कंसंट्रेशन में, लेकिन यहाँ से आपका डबल हो रहा है। जब डबल हो रहा है तो ये 16 टाइम्स लेस हो रहा है। नाउ दिस इज डिक्रीजिंग 16 टाइम्स, यही हो रहा है ना। और यहाँ पे आपका जो है डबल हो रहा है, तो ये आपका 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो आप ये लिख सकते हो इसमें फॉर ए, रिएक्टेंट ए के पहले हम बात करते हैं। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज्ड पावर। 16 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे डबल हो रहा है, तो दैट मीन्स -4। बी के केस में बी डबल हो रहा है, हाँ यहाँ पे 4 टाइम्स हो रहा है, तो b²। तो इसी को आप जोड़ते हो आपस में, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज पावर -4 b रेज पावर 2, और r इज इक्वल टू k a रेज पावर -4 b रेज पावर 2। देखो कितना इजी है। आपने जस्ट ये यहाँ से आपने देखा कि यहाँ पे जो है कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे डबल हो रहा है, तो यहाँ पे आपका रेट जो है 16 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। और सिमिलरली आपने यहाँ देखा यहाँ पे डबल हो रहा है और इसमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आपका 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। तो सिंपली आपने इसमें लिख दिया, तो r इज डायरेक्टली 8⁻⁴, क्योंकि 4 टाइम्स डिक्रीज 16 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आपने लिखा r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल b⁻2, क्योंकि 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो इक्वेशन आपके पास आ गई, तो यहाँ से आप इजीली आप k निकाल सकते हो। ये जो इक्वेशन है इसमें आप इजीली k की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से जो है आपको कुछ नहीं करना, r जो है आपको दिया हुआ है। लेट्स सपोज आप ये वाला वैल्यू लेते हो r का, तो यहाँ पे r की वैल्यू पुटअप करते हो, a की वैल्यू पुटअप करते हो, b की वैल्यू पुटअप करते हो, तो आपको इजीली k मिल जाएगा। और बल्कि आपको यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पता चल जाएगा इजीली। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, -4 + 2, दैट मीन्स -2, दैट इज अ नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। तो ये देखो कितने इजीली हो गया। तो एग्जाम, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको एग्जाम में शॉर्टकट मेथड ज़्यादातर आपको यूज़ करना चाहिए। इससे आपका क्वेश्चन जो है इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा एग्जाम में। जो भी एंट्रेंस एग्जाम होगा, चाहे नीट का एग्जाम हो या जेईई का एग्जाम हो, तो वहाँ की स्ट्रैटेजी आपको बनानी है कि आपको शॉर्टकट मेथड पे ज़्यादा ध्यान देना है। हाँ, जब आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम में आपके पास टाइम जो है सफिशिएंट होता है, तो वहाँ पे आप डिटेल में कर सकते हो, जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया
कि हम ऐसे एक लॉ जो है रेट लॉ एक्स पर प्रिज्यूम करते हैं कि लेट सपोज रेट आर इज इक्वल टू के टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, तो उसमें फिर ये वैल्यूज पुटअप करके तो इक्वेशन बन जाती है 3 इक्वेशंस, तो वहाँ से आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकल आती है। जब एक्स और वाई पता चल गया तो आप एक रेट लॉ जो है बना सकते हो, फिर उससे के की वैल्यू आ जाएगी, तो ऑर्डर सब पता चल जाएगा उसमें, तो डिटेल में हो सकता है वो बोर्ड एग्जाम में आप कर सकते हो। लेकिन इंट्रेंस एग्जाम की जहाँ तक बात है वहाँ पर आपको तो थोड़ी जल्दी में रहना होता है, आपको जल्दी जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट में फ़ायदा करेगा। तो ये आप देख सकते हो इसको। तो आप पास्ट ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं जो आपको एग्ज़ाम आए हैं, जो आईआईटी में एग्ज़ाम है, हम भी यहाँ कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन जो है अभी लेंगे, लेकिन आप खुद भी जो है आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है या जो भी आप बुक्स कंसल्ट कर रहे हो इसके लिए पढ़ने के लिए, तो उन पे भी आप पास्ट ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, तो वो आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। तो अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, हम आगे एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आईआईटी में एग्ज़ाम आया, आईआईटी में एक क्वेश्चन आया, आईआईटी 2004 में क्वेश्चन आया है। तो आप इस क्वेश्चन को लिखो, इसमें दिया है इनिशियल ए जो कि है मोल्स पर लीटर में, और आपको दिया है इनिशियल बी, अगेन इट्स गिवन इन मोल्स पर लीटर, एंड यू आर गिवन इनिशियल आरओआर, दैट्स इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, दैट्स अगेन इन मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो ये आपको दिया है 0.1, ये भी 0.1, और ये दिया है 0.05, दिस इज 0.2, 0.1, 0.1, दिस इज 0.1, दिस इज 0.2, दिस इज 0.05। तो आपको क्या निकालना, आपको निकालना है फाइंड रेट इक्वेशन एंड रेट कांस्टेंट। तो ये दो चीज़ें आपको निकालनी है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो है कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, और यहाँ पे आपका जो है हाफ हो रहा है, हाफ। तो यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन जो है डबल हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक डबल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे नो चेंज। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर आप शॉर्टकट देखते हो, यहाँ पे हम शॉर्टकट से करेंगे इसको। तो आर, अगर ए की बात हम करते हैं, ए के केस में जब रेट डबल हो रहा है तो यहाँ पे हाफ हो रहा है, सॉरी ये डबल हो रहा है, सॉरी, तो यहाँ पे ये डबल हो रहा है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए रेज पावर 1। और अगर हम बी की बात करते हैं तो बी के केस में चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक डबल हो रहा है तो ये चेंज नहीं हो रहा, तो ये हम लिखते हैं बी की पावर 0। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए रेज पावर 1 बी रेज पावर 0, और यू कैन राइट आर इज इक्वल टू के a raised power 1 b raised power 0, it's anything raised power 0 is 1, so you can write r is equal to k a raised power 1। अब आपको r is equal to k a raised power 1 जो है इसकी रेट इक्वेशन है, पता चल गई, और इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब k की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, r की वैल्यू आपको पता है 0.05 है, इज इक्वल टू k, उस केस में a की वैल्यू क्या है 0.1 है, रेज पावर 1, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू आ जाएगी 0.05, डिवाइड बाय करना है 0.1 से, तो आ जाएगा 0.5। तो k की वैल्यू आपको 0.5 आ गई। तो अब आपको यूनिट्स देखने हैं इसकी, चूँकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको आता है मोल पर लीटर रेज पावर 1 माइनस n, दैट्स 1 माइनस 1, सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू 0.5, ये आ जाएगा एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, तो ये जाएगा
सेकंड इनवर्स। सो दैट मीन्स आपको के की वैल्यू आ गई 0.5 सेकंड इनवर्स, और आपको रेट लॉ की एक्सप्रेशन आ गई 0.5 a raised power 1। तो दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज रेट कांस्टेंट, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। तो ये आईआईटी में आईआईटी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आईआईटी में 2004 में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आप सिंपली शॉर्टकट मेथड से कर सकते हो। ये आपका एक ही कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे डबल हो रही है, और इसी केस में आपका यू जो है डबल हो रहा है रेट। और जब बी पे आप आते हो तो बी में जब डबल हो रहा है तो रेट सेम रह रहा है, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे आपकी वैल्यूज आ रहे हैं, तो आप इसको नोट कीजिए। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है, जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर करना है अपने दिमाग में कैसे करना है। और पास्ट ईयर क्वेश्चन जो मैं एक बार बार कह रहा हूँ, पास्ट ईयर क्वेश्चन आपको बहुत करने हैं, ताकि आपको क्वेश्चन के ऊपर कमांड बन जाएगी। अब बच्चों लेट सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है A+B गिव्स और A+2B गिव्स 3C+D। अब हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, और वी कैन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। इसके कैसे हम लिखते हैं वो, ROR इज इक्वल टू माइनस 1/1 dA/dt इज इक्वल टू माइनस 1/2 dB/dt। ये आपका रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ, प्लस 1/3 dC/dt इज इक्वल टू प्लस 1/1 dB/dt। ऐसे ही लिखते हैं ना हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन, जब हम इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिखते हैं -1/1, इसकी जो है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड करना है dA/dt, -1 क्योंकि रिएक्टेंट है कंज्यूम हो रहा है 1/2 dB/dt प्लस 1/3 dC/dt प्लस, तो ऐसे लिखना आपको। तो अब आईआईटी जेईई मेंस का आईआईटी 2014 जो है मेंस का क्वेश्चन है। आईआईटी 2014 जो है उसके मेंस में क्वेश्चन आया है आईआईटी 2014। ये भी हम क्वेश्चन यहाँ पे लेने वाले हैं, 2014 मेंस का क्वेश्चन है। क्या बता रहा है, 2A+B गिव्स C+D। उसके बाद आपको दिया है इनिशियल A मोल पर लीटर में क्या क्या दिया है, 0.1, 0.1, 0.2, और इनिशियल B अगेन इन मोल्स पर लीटर क्या क्या है, 0.1, 0.2, 0.1, और आपको दिया है इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, R is again in moles per liter per second। ये दिया है 1.2 into 10 to the power minus 3, 1.2 into 10 to the power minus 3, 2.4 into 10 to the power minus 3। आपको निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C वो है dC/dt सेम एज R। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C निकालना है आपको। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन के। पहला ऑप्शन है K A into B, दूसरा ऑप्शन है K A square B, तीसरा ऑप्शन दिया है K A B square, चौथा ऑप्शन दिया है K into A। तो
अब अगर आप यहाँ देखोगे, आप यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हो? आप यहाँ पे देखो, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू आर ओ आर, जो कि सेम है आर के बराबर वाई का -1/2 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू -1/1 डी बी बाई डी टी. It will be +1/1 d c by dt. It will be equal to +1/1 dd by dt. अब ये सारे r के बराबर है, तो आपको निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c, दैट इज dc by dt, जो कि r है बेसिकली. तो अब अगर यहाँ देखो, यहाँ कांस्टेंट है और यहाँ पे डबल हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है, तो ये भी डबल हो रहा है रेट, और यहाँ पे आपका डबल हो रहा है, तो यहाँ पे सेम रह रहा. तो आप r को लिख सकते हो, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज्ड पावर 1, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b रेज्ड पावर 0. क्योंकि b के केस में आपका जो है, जब आप b की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हो तो रेट सेम हो रहा है, यहाँ पे जब डबल कर रहे हो तो रेट डबल हो रही है. तो आप इसको कंबाइन करके लिख सकते हो, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज्ड पावर 1 b रेज्ड पावर 0, r इज इक्वल टू k a रेज्ड पावर 1 b रेज्ड पावर 0, r इज इक्वल टू k a रेज्ड पावर 1, बिकॉज एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज 1, तो ये 1 है, इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है. तो आपको जो आ रहा है कि a रेज्ड पावर 1, तो ये वाला आपका आंसर ठीक है. दैट्स सेम एज dc by dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c. तो ये क्वेश्चन जो है IIT JEE जो है मेंस 2014 मेंस में पूछा गया है. देखो कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत पता नहीं क्या है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन है कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है. आपको बस कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और उसके हिसाब से आपको इजीली आपका आंसर आ जाता है. फोर्थ इसका ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर ऑर्डर की वो बात कर रहा था कि इसका ऑर्डर क्या है, तो उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी यहाँ से आप पता कर सकते हो. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 + 0, दैट मीन्स इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इवन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अगर के यूनिट पूछता है तो उसके हिसाब से आप के की यूनिट्स भी निकाल सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट्स क्या होंगे, तो सीधे इसके यूनिट्स होंगे सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में. तो कुछ भी पूछ सकता है वो, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो कि JEE एडवांस 2014 में पूछा गया है. JEE एडवांस 2014 को क्वेश्चन है, अब हम उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं. IIT JEE एडवांस 2014 में पूछा गया है. तो नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. क्वेश्चन है फॉर m गिविंग n, दैट मीन्स m जो है m से आपका n बन रहा है, एक रिएक्शन हो रही है. द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, अब m तो डिसअपियर होगा, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ m increases by a factor of 8 upon doubling the concentration of m. Doubling the concentration of m. The order of reaction. The order of reaction with respect to m is, m के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपको बताना है. तो आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो, ROR इज इक्वल टू ROR इज -1/1 dm by dt इज इक्वल टू +1/1 dn by dt, ये होगा. तो नाउ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ m क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ m इज इक्वल टू dm by dt. It will be same as r. तो हम रेट ला एक्सप्रेशन इसकी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू k m टू द पावर x. अब ये कह रहा है कि जब हम द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ m इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 8, तो वो 8 के फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ
m, जब हम n की कॉन्सेंट्रेशन में डबल करेंगे तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो m को हम डबल करेंगे तो रेट कैसे 8 गुना हो जाएगा, जब यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यही तो आ जाएगा r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 क्यूब, तो 8 हो गया, तो 8 टाइम्स रेट बढ़ जाएगा, तो r इज इक्वल टू रेट पावर 3। बट वी आर ऑल्सो प्रोवाइड विद सम डेटा हियर, तो आपको कुछ डेटा भी दिया हुआ है इसमें, इनिशियल m दिया है और इनिशियल रेट दिया है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। m का इनिशियल वैल्यू है 0.1, ये 0.2 और इसका वैल्यू है 1 इंटू 10⁻³ 8 इंटू 10⁻³। अगर आप यहाँ से भी करने की कोशिश करोगे, लेट r इज इक्वल टू k m टू द पावर x, तो r की वैल्यू आप जो है पहले आप पुट करोगे वो 0.1 इक्वल टू k 1 इंटू 10⁻³ रेट पावर x, दूसरे केस में 0.2 इंटू k 8 इंटू 10⁻³ रेट पावर x, फर्स्ट ये सेकंड। ये मैंने आपको शॉर्टकट दिखा, ये बहुत इजी है, आपको अगर आप दिमाग में आप जो है इसको अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि इस रेट जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होगा। लेकिन अब मैं यहाँ से बताऊँगा, ये जो दो इक्वेशंस बन गई उनको मैं डिवाइड करूँगा, तो ये जो सेकंड इक्वेशन है, मैं यहाँ सेकंड, ये जो इक्वेशन है मैं सेकंड को डिवाइड करूँगा फर्स्ट से, तो 0.2 1 से डिवाइड होगा तो ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ k कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा 8 टू द पावर x। तो ये आ जाएगा आपका 0.1 0.2, तो ये आपका जो है ये आ जाएगा 1 × 10⁻³, तो ये आ जाएगा आपका 0.2 तो 8/दिस आ जाएगा, तो ये 2 क्यूब आ जाएगा। तो ये आपका जो है बेसिकली ऐसे हो नहीं रहा है, ये 2 = 8 रेज़ पावर x हो रहा है, तो 2 = 2 क्यूब इंटू x, तो ये ऐसे नहीं हो रहा है। तो जब आप इसको ऐसे करने की कोशिश करते हो, when you try to solve it like this, तो आपको यहाँ से क्या है, बेसिकली यहाँ से आपको r की वैल्यू जो है, r जो है आपका r = k m टू द पावर x, तो यहाँ पे बेसिकली आपको जब आप लेट्स डू इट अगेन, तो r जो है आपको यहाँ पे बेसिकली जब r है, r की वैल्यू आपको यहाँ पे पहले डालनी है 1 × 10⁻³ आई एम सॉरी, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, आई एम सो सॉरी, ये आपका जो है ये गलत है। बेसिकली r की वैल्यू यहाँ आपको पुट करनी है, कि m की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। m की वैल्यू जो है आपको पहले केस में क्या है, पहले केस में आपको दिया होगा 0.1 रेज़ पावर x, ये आपकी पहली क्वेश्चन बनेगी, तो ये आपकी दूसरी क्वेश्चन बनेगी। आई वाज सॉरी हियर, आई पुट रॉन्ग वैल्यूज बोथ, सो के ये आपको बनेगी 0.2 रेज़ पावर x, ये दूसरी, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था। तो अब यहाँ पे सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करोगे, नाउ यू डिवाइड दिस इक्वेशन, जब सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करोगे तो ये 8 आएगा, और यहाँ पे के कैंसिल होगा, तो ये आपका 2 टू द पावर x आएगा, तो ये 2 क्यूब = 2 टू द पावर x आएगा, तो यहाँ से आपकी वैल्यू x की वैल्यू होगी 3। अब ये जो x की वैल्यू है बेसिकली, तो आप यहाँ से लिखते हो r k m टू द पावर x, दैट्स 3, क्योंकि x की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली। अब ये जो 3 है, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही तो हमें निकालना था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट m के रेस्पेक्ट में हमने ऑर्डर निकाला कि वो आपका होगा 3, तो r = k m टू द पावर 3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू
3. I hope you got this question. This was little tricky question, थोड़ा सा tricky था ये, लेकिन बहुत आसान question था. You can do it. बस आपको concept जो है वो clear करना है और you have to solve the past year questions. तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा. तो आपने आज के लेक्चर से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी. लेकिन मैं अगेन आपको फिर से आपको कहूँगा कि यू हैव टू सॉल्व द पास्ट ईयर क्वेश्चन. जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. आप जितने भी आपकी जो रेफरेंस बुक्स हैं या जो भी आपकी NCERT की बुक्स है उसमें जो भी क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. एंड आई विश यू गुड लक. आई विश यू good luck for your exams. Good luck. So that's it for today. So we'll meet again in the next lecture. So हमारे next lecture होगा वो zero order reaction पे होगा, zero order kinetics पे होगा. So we'll be taking the zero order reaction. तो काफ़ी मज़ेदार lecture होने वाला है वो भी. तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए. And I wish you all the very best. Thank you.